Okay, so here we have a second question. So in this question we have two categories, that is crossover and non-crossover, and then we have there is one more variable, that is mother's age. So we have to check, is there any association, significant association between the frequency of crossover and mother's age. क्या frequency of crossovers and mother's age का कोई significant association है या नहीं है. ठीक है. Okay, so अगेन यहाँ पे जो डेटा प्रोवाइडेड है, सो दीज आर द मदर्स एज. ठीक है, 5 साल की मदर, 10 साल की मदर, 20 साल की मदर एंड 30 साल की मदर. ऑब्वियसली दिस इज नॉट ह्यूमंस, दिस इज ड्रोसोफिला. ठीक है, दिस इज ड्रोसोफिला व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. Okay, so these are the different mother's age and these are the frequency of crossover and the frequency of non-crossover. We have to check, is there any association between mother's age and frequency of crossover. तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले अगेन टैबुलर फॉर्म में डेटा प्रेजेंट है, हम लोग रो को टोटल कर देते हैं एंड कॉलम्स को टोटल कर देते हैं. सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम आई हैव सम प्री कैलकुलेटेड डेटा फॉर दिस. सो हम जस्ट लिख देते हैं. So what we are doing is we have to do the sum of rows and sum of columns. Sum of first row will be 247 plus 291, that is 538. 538. Similarly, 152 plus 284 gives me 436. 174 plus 393 gives me 567. 140 plus 495 gives me 635. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, रो का टोटल कर लिया. अब करते हैं कॉलम का टोटल. तो कॉलम का टोटल, दैट इज ऑल द क्रॉसओवर्स, ये सारे वैल्यूज को प्लस करेंगे तो वी गेट 713 एंड ऑल द नॉन क्रॉसओवर्स इज 1463. 1463. ठीक है, तो दोनों डेटा मिल गया हमको. वी गेट ऑल द row total and all the column total. We will be needing this in order to find the expected frequency. Expected frequency में हम लोग को लगेगा. So again the same columns to be repeated. First is observed frequency, the second is expected frequency, the third is observed minus expected frequency, the fourth will be observed minus expected frequency का square, then observed minus expected frequency square divided by FE. ठीक है, that is expected frequency. Okay, now क्या करते हैं, ये सारे डेटा को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देते हैं. ये सारे डेटा को हम लोग कॉपी कर देते हैं. ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा. So let's write 247, 152, 174, 140, 291, 284, 393, 495. So we have just copied all the data. Observed frequency. अब क्या करेंगे, expected निकालेंगे. तो the first one is 247. 247 के लिए FR क्या हो जाएगा, ये. तो as we can see, what is the formula to find the expected frequency? Expected frequency का formula क्या है, FR into FC, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई n. रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई n, और n यहाँ पे है 2176. n क्या है, 2176. चाहे आप कॉलम को टोटल कर लें चाहे रो को टोटल कर लें, बात एक ही है. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 247 का हो जाएगा 538 मल्टीप्लाइड बाई 713 डिवाइडेड बाई 2176. 538 divided by 713, 538 multiplied by 713 divided by 2176. Okay, so this is the calculation for the first expected frequency. So already I have pre-computed expected frequency, जिसको हम लोग यहाँ बैठा देते हैं. I hope आप क्लियर है कि expected frequency कैसे निकालना है. Okay, so the expected frequency for the first one will be 176.3. 176.3. The next is 142.9, 185.8,
208.0, then we have 361.7, then we have 293.1, 381.2, 427.0। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहां पे निकाल लिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, वी कैलकुलेटेड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। देन क्या करेंगे, नेक्स्ट इज FO माइनस FE, मतलब इसको this minus this, FO minus FE, FO minus FE. Similarly, we will get the values here. So the first one will be 247 minus 176.3, that gives me 70.7. The next will be 9.1. Next 11 minus 11.8 minus 68.0. Then we have minus 70.7, then we have minus 9.1 plus 11.8 and finally plus 68.0। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या आ गया, FO minus FE आ गया। ओके, सो नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ FO minus FE का स्क्वायर, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। लेट्स सी क्या होता है, तो 70.7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4998.49। नेक्स्ट 9.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 9.1 का स्क्वायर इज 82.81। सिमिलरली इसका हो जाएगा 11.8 का स्क्वायर है 139.24। 68 स्क्वायर इज 4624। सिमिलरली हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज FO minus FE होल स्क्वायर, दैट इज दिस थिंग डिवाइडेड बाय FE। तो दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग, दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ये डिवाइडेड बाय ये। तो ऐसे करके डिवाइड करेंगे। तो पहला वाला हम करके दिखाते हैं, एक दो करके दिखाते हैं, देन आई विल कंप्लीट द डेटा एंड आई विल टेल यू द प्रॉपर आंसर। ओके, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ये कॉलम के लिए 4998.49 divided by 176.3, that gives me 28.35. Next 82.81 divided by 142.9, that is 0.579। ठीक है, तो 0.58 भी इसको लिख सकते हैं, 0.58। तो इन अ सिमिलर फैशन वी विल जस्ट कंप्लीट द टेबल एंड देन हम आपको आगे बताते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टेबल। हम लोगों ने सारी कैलकुलेशंस कर दी है। वी हैव FO minus FE होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE के वैल्यूज। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप, दैट इज कैलकुलेशन और एडिशन ऑफ ऑल दीज डेटा। ठीक है, ये सारे लास्ट वाले कॉलम का डेटा का एडिशन कर देंगे एंड देन द एडिशन विल बी नथिंग बट द वैल्यू फॉर chi स्क्वायर। तो अब ऐड करते हैं। ठीक है, 28.35 प्लस 0.58 प्लस 0.744 प्लस 22.23 प्लस 13.82 प्लस 0.28 plus 0.36 plus 10.83, we get 77.194 और 77.2। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर क्या आ गया, 77.2। ओके, नाउ दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। लेट्स सी के 0.05 लेवल पे chi स्क्वायर का वैल्यू क्या है। 0.05 लेवल पे chi स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो उसके लिए पहले हमको df निकालना होगा। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, we know that to calculate the degree of freedom we have to use the formula df equals to r minus 1 c minus 1।
Okay, so how many rows are there? 1 2 3 4, 4 रो है, तो 4 minus 1, and column is, there are two columns, 2 minus 1, two columns, 2 minus 1, so that gives us the df of 3. df कितना आ जाता है? 3 आ जाता है. Okay, so chi square का value at 0.05 level for df3 is basically 7.82. कितना है? 7.82. नाउ वी कैन सी कि जो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है 77.19, और वी कैन से 77.2, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द क्रिटिकल वैल्यू से. ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू से काफी ज्यादा है. सो वी कैन से द नल हाइपोथेसिस इन दिस केस इज रिजेक्टेड. नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. Okay, what is the null hypothesis? Null hypothesis is there is no significant association between mother's age and crossover, frequency of crossovers. ठीक है, तो frequency of crossover and mother's age में कोई significant association नहीं है. ये क्या बोलता है? null hypothesis बोलता है. ये reject हो जाएगा. reject हो जाएगा मतलब कि according to this data we can conclude that there is a significant association between the mother's age and frequency of crossovers. तो ये दोनों related variables हैं. Okay, so this was the second example of chi-square. In the next lecture we'll try to understand a special type of case जिसको बोलते हैं Yates correction. Yates correction, we'll try to learn what is Yates correction, उसमें formula में क्या आएगा change, and when to apply it. Okay, see you in the next lecture.